So, hello, and welcome to the fourth session of Fanoon Forum. Fanoon Forum is an intellectual dialogue forum for the youth by the Youth House at Happen City. We conduct monthly sessions on academic discussions, art, culture, literature, and anything that raises the collective intellect of our society with a focus on youth. The forum is directed by Shoaib Arshad, and I am thankful to him for giving me this opportunity today. Today's discussion is titled Passion, Profession, and Popularity, a highly important topic in our world, and we are honored to be joined by our two esteemed guests. Mr. Junaid Zubairi, serving as the Chief Executive Officer of prestigious National Academy of Performing Arts. Although he ventured into the corporate world after a graduate degree from IBA, Mr. Zubairi kept his association with art and culture ironclad. He founded Sur Sangam and is an executive member of several literary and art groups. Thank you so much for joining us today. And we have Mr. Bilal Hassan, known as Mr. Paki, is a well-known content creator. On the traditional work front, he is a doctor who serves as a program coordinator at the Indus Hospital. His passion rests in creating informative and influencing videos for his audience, mostly based on his engaging travel experiences. His content is driven by social and cultural elements. Thank you, sir, for being with us here today. The discussion is open in nature and will not only entertain your questions, but encourage them by providing a discount coupon. It will be moderated by Iman Asad, an undergraduate student at Sufa University. And I invite the guest to please take the stage. Thank you, Fanoon Forum and Sir Shoaib, for giving me this platform. Okay, my voice is a bit shaky because this is my first time moderating this, so I'm sorry if it be inappropriate. But as a student, I think this is one of the biggest things I'm doing in my life at 20 years of age. This forum, I've been in this forum since its inception, like this first day, and I'm so grateful for everybody, Sir Omar, Sir Shoaib, for trusting me with this right now. Also, I'm very passionate about the entire topic as well. So let's begin this. Sir, my first question is with Sir Mr. Junaid Zubairi, and it's about, I heard that you started Sur Sangam when you were in college, university, I think. Oh no, when you were in Canada, yeah. So what fueled that? How did you think that, along with a financial career, that as an IBA graduate, you should venture into this musical thing? Thank you. Before I answer your question, I just want to let this august audience know abhi hum piche baithe hue the before coming to this hall. So I was telling Bilal कि यहाँ जो ये सारा मजमा इकट्ठा हुआ है, ये तुम्हें सुनने के लिए हुआ है, उसको जो कीमत अदा करनी पड़ेगी वो पहले मुझे सुनने की बिकॉज ये ज़माना जो है ये कंटेंट का ज़माना है. एवरीबॉडी इज सो आफ्टर. ये लोग हैं जो आपके असल हीरोज हैं, बट since there is no ticket to this event, so I'm the ticket. Now, coming back to your question, yes, I did my graduation from IBA. And as it happens, जो business graduates होते हैं जब वो MBA करके और ये सारी business studies करके निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उनका जो mindset होता है अभी एक मुख्तलिफ और एक ख़ास तरफ एक सिमत पे होता है. They go to the corporate sector, they go to the financial world, और वो उनका बहुत एक जहन उन चीज़ों में होता है. मैं भी उसी सिमत में गया उस तमाम काफ़िले के साथ. लेकिन आर्ट से दिलचस्पी, और ख़ुसूसन बनाए से आर्ट, आई मीन परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो थिएटर हो या और फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट हो, उनसे दिलचस्पी हमेशा से थी और वो एक शौक़ था. And I realized at some point in my life, very early in my life, that my calling is music.
सो मुझे शौक रहा बहुत ज़्यादा, और शायद कहीं पर ये एक हसरत थी और एक रिग्रेट थी that I could not learn myself, कि ना मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सका, ना मैं गाना सीख सका, ना वो माहौल मुझे मिल सका, ना वो मौके मुझे मैसर आए. सो उस कमी को पूरा करने के लिए जब मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ कर सकूं, सो आई थॉट कि why not bring the audience and the artist together, और जो चीज़ जिसका शौक मैं रखता हूँ वो मैं खुद क्यों enjoy करूँ. Let's enable people and let's make an enabling environment जहाँ से भी इकट्ठा होकर उसको सुने, enjoy करें और एक अच्छा वक्त गुजारें, चंद लम्हात जो अपनी अदरवाइज बहुत ही स्ट्रेसफुल ज़िंदगियों में लोग नहीं उनको मौका मिल पाता. सो ये उस तरह से विद सम फ्रेंड्स जो हमारे जैसे जहन के लोग थे, उनके साथ मिल के हमने एक सिलसिला शुरू किया. और ज़्यादा इसको जो पनपने का मौका मिला वो जब मैं मुल्क से बाहर गया कनाडा, तो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जाके ये अंदाज़ा हुआ कि हम जब पाकिस्तान में थे तो अपने एक बबल में थे, सारे अपने लोग थे, अपना माहौल था. वहाँ पर आप कहीं किसी आर्ट एक्टिविटी में चले गए, किसी और जगह चले गए, पर नई जगह जब आए जहाँ पर आप किसी को नहीं जानते, अजनबी देश है, अजनबी लोग हैं, कुछ पता नहीं, तो वहाँ यू मिस योर होम, यू मिस योर culture, you miss all those activities that were part of your life. So I thought कि बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें यहाँ पर कुछ और चीज़ कहाँ हमें कुछ मिलती है, क्यों ना हम खुद कुछ शुरू करें. Why not take that first step ourselves? So फिर कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके वो सिलसिला शुरू किया, and that's how the journey began. That's so inspiring. It really is inspiring. But coming back to that point about calling, sir, मेरा सवाल आपसे हो गया था. Because your profession, your traditional workforce is as a doctor. So that, it's so weird to imagine somebody in that field. It's such a busy field, like medicine. You're constantly busy somewhere, you're saving lives, you're doing something, you're impacting the world through that. How did you think you need to sort of, deviate from that and focus on content creation? It wasn't something which I planned. मुझे content creator बनना and everything, because when I started off it was a very different time. Like content कोई वो नहीं था कि oh my god इससे पैसे आएंगे, ये आएगा. No, it was not like that. It was very pure. And I basically जब हमारा medicine जब खत्म होता है 5 साल, तो we have like a year होता है where we prepare for our exams. Are there any med students here, any doctor people over here? So yeah, आप लोगों को पता होगा कि when you graduate एक साल होता है where you decide what exam you want to give. आप lab देते हैं, USMLE देते हैं, FCPS देते हैं, everything. So I was in that year. And it's a very tough year. So उस ज़माने के अंदर I just used to put out content and they were just my thoughts. साफ सी बात है. I mean मुझे कोई वो नहीं थी, उम्मीद थी कि कोई देखेगा ये. I was like I'm just putting them out. और साथ में मेरा जो content था, मेरी बिल्ली की तस्वीरें होती थी, ठीक है, थोड़े अपने thoughts थे, ठीक है. And then somehow people related. They're like, I get what you are saying. And I started sharing more thoughts. ऐसी thoughts के साथ साथ I started sharing a bit of culture and everything. कि what I thought, questioning what it means to be Pakistani, because being Pakistani also is a very it's a very created identity. At the end of the day, we lie between India and Iran and Afghanistan, and I think it was exploration. Like, what does it mean to be Pakistani? And it just happened. And like. Lo and behold, I'm here today. I'm very glad to have you. Yeah. We really appreciate your presence. But आज के ज़माने में when we hear the word influencer, it's very negative. So how do you manage that? How do you not just stay an influencer? How do you manage to impact lives? I mean, it depends on whether आप influencer हो, then how are you influencing? That is what it is. I recognize the fact that I have a platform, and if thousands of people are looking at me, it's how I use it, what I use it to talk about. And I'm also very cognizant of my privilege कि अगर मैं बोलूँगा तो maybe लोग सुनेंगे. So and कई दफ़ा मेरे दिमाग में ये बार-बार होता है कि I think I should be speaking about this, and there's a lot of people who will not speak about it. But like I went with अपने ही पैसे, बिल्कुल funded my whole thing. I was like, when I saw Pakistan mein where people were sending so much hate
to Afghan refugees and were telling them कि go back and वो वाली बातें सारी कर रहे थे. I was like मैं अपने पैसे से अफगानिस्तान जाऊँगा. I went to Afghanistan with my own money and I literally just put out an entire series just to show people in Pakistan कि these are the people who you're talking so bad about. And yeah, that's how you influence. Depends how you want to influence. That was a great initiative. As somebody who speaks about these issues as well, I resonate with that. It was a great initiative. Also, just to let you know, Fanoon Forum by Sir Shoaib is also funded by his own money. He does not take any help. He started this forum for our students, and in a way it impacts our lives because like right now I'm sitting here and this is my first session, so it means a lot to have you all here, to have the audience here, to have myself here. It's in a way it's magical. It makes sure that art remains alive, and not just like art as in dancing or music, but all forms of it. Poetry हो गई, reading हो गई, कुछ भी. I think जो हमारे मुल्क में जो बड़ा एक प्रॉब्लम है, हम लोग ब्लैक एंड वाइट में बहुत सोचते हैं. Yeah. ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग, हम इसमें बहुत सोचते हैं. बनिस्बत की चीज़ें बहुत ग्रे होती हैं. Things are complicated and everything. And kudos to you guys to encouraging people to critically think and analyze how everything is. Sir, मैं थिएटर में भी बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ and it feels like कि this whole idea of नापा, I think बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसमें एडमिशन्स लिए हैं, उसमें उससे सीखा है. What made you decide that you need to be a CEO of NAPA and give that platform to youth? What was the idea and how do you differentiate the students of NAPA from the rest? Well, before I respond to your question, I want to know from the younger audience sitting here, आप लोग वाकिफ हैं नापा के नाम से और what NAPA is? I'm glad this boy knows I know. Okay, I'm so glad because I've encountered young people जो आके ये सवाल करते हैं कि ये क्या इदारा है, क्या काम होता है. They're not really aware. So, well, it was not my choice in a way that I picked this position. I was selected through a process. It was advertised in the papers. I applied and I succeeded. And I always tell people कि देखो हम हमेशा ये सोचते और ये बात करते और ये assume करते हैं कि हमारे मुल्क में गालिबन सिर्फ यही होता है कि जान पहचान के ऊपर या किसी और ज़राए के ज़रिए नौकरियां लग जाती हैं, लोग अपॉइंट हो जाते हैं, लोगों की प्लेसमेंट्स हो जाती हैं. But in my case, when I joined NAPA, a lot of people asked me, how did you end up over there? So it was purely on merit. One fine Sunday morning, I saw the ad in Dawn, and it spoke to me in a way because I felt that what they were looking for, as I could read from that ad, जो उनकी जो requirement थी, जो वो चाह रहे थे, वो मुझे लगा कि मैं वो चीज़ ऑफर कर सकता हूँ. Because देखिए एक इदारे को जो चलाना होता है, किसी भी इदारा हो, किसी भी नौयत का इदारा हो, उसको चलाने के लिए जो स्किल सेट चाहिए बहुत मुख्तलिफ है. If it's an arts institution, it's not mandatory that you have to be an artist in order to run the organization. क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं. In my role, I don't have to act in theatre, I don't have to sing or perform in any manner. I have to run the organization. That must be which is hard. like running any other organization. That has to be Now, hard. if that is blended, that those skill sets, those जो requirements हैं वो अगर blend हो जाएं, उस passion के साथ जो वो इदारा काम कर रहा है, so I think वो synergy अच्छी बन जाती है. Music, art, theatre, films, ये सारी जो art forms हैं, ये सारा passion मेरा था. So my passion and my skill set somewhere along the line they sort of met. And in this case, मैं तो ये कहूँगा कि for me it was the story of passion becoming profession. So every day of my life is not like, oh gosh, I have to go to work again. It's not like that, which happens in many cases. But I look forward to getting up every morning, going there. And there are days, many days in a year, कि मैं सुबह जब जाता हूँ तो फिर I spend 12-13 hours over there because दिन भर अब दफ्तर है, शाम में कोई performance है, कोई activity है, and I have to stay on and I want to stay on. So I enjoy that.
ये बहुत मुश्किल होता है नो पैशन एंड प्रोफेशन को साथ साथ लेके जाना. समटाइम्स पीपल डोंट ऑफन चूज पैशन, दे जस्ट गो लाइक कि नहीं वी नीड टू वर्क 9 to 5 and earn, and this whole idea of a dream life, mansions and cars and millions of dollars I'd say. But how do you manage, how do you both manage that idea कि नहीं passion भी चलेगा, profession भी चलेगा, 9 to 5 नहीं है, it doesn't matter, we need to work for what we want. इस पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग जो है ना वो आप जब उनसे बात करेंगी तो वो इस तरह का आपको इम्प्रेशन देंगे या बात करेंगे कि हम एक अजीब किस्म के रूटीन में फंसे हुए हैं. सुबह नौकरी है, बिजनेस है, जो भी चीज़ है, घर के मसाइल, फैमिली सिचुएशन, सारा कुछ. उसको कहते हैं कि हमें तो ना मौका मिलता है ना वक्त मिलता है कि हम वो चीज़ें कर पाएँ जो शायद हमारे दिल के करीब है या जिसमें हमें दिलचस्पी है, जिसको आप पैशन कहती हैं. कि हमारा तो पैशन कभी था, वो खो गया कहीं रास्ते में और अब हम फंस गए ज़िंदगी के भंवर में और इस भाग दौड़ में. सो बात ये होती है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं आपको उसका वक्त मिल जाता है. हमेशा ये होता है. मैंने ये चीज़ अपने ज़िंदगी में भी देखी. मैंने आई वाज स्टडीइंग, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद जब मैं नौकरियों में रहा, कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा, बैंकों में मैंने काम किया, तो जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो वर्क प्रेशर्स होते हैं, जो सारी वो चीज़ें होती हैं, उस सब के बावजूद अगर मेरा कोई पैशन था एंड इफ आई नीडेड टू गिव इट टाइम, आई गिव इट टाइम. वो चीज़ होती है. हम ये जो एक जुमला हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी आम जिंदगी में कि मुझे वक्त नहीं मिला. वक्त तो हमेशा होता है, हर शख्स के पास होता है. हाँ, वक्त हमें उस चीज़ के लिए नहीं मिला जिस चीज़ का आपने कहा, या उस शख्स के लिए नहीं मिला जिसका आपने पूछा. वक्त हमने किसी और चीज़ में सर्व किया, किसी और शख्स के लिए सर्व किया, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी कुछ और है ज़िंदगी में. हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है. तो जिस चीज़ की प्रायोरिटी नहीं होती उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं था. वक्त नहीं था कि हम कहीं बाहर जाते, वक्त नहीं था कि हम फिल्म देखते, थिएटर देखते, कुछ और काम करते. वक्त तो था बट वो वक्त कहीं और के लिए था. ये वक्त वाली बात मैं अपनी मैम से करती हूँ. शी इज़ इन द ऑडियंस राइट नाउ. तो मिस नाविया, शी ऑलवेज लाइक तुम लोग के पास बहुत वक्त, तुम लोग बहुत फारिग हो, तुम लोग कुछ करते नहीं हो. सो आई थिंक दैट इज़ वन पॉइंट के वक्त बहुत है, हम नहीं करते कुछ. I really don't agree with that, idea that your life is short. You make it short, I feel like. It's so huge, you can make so many things, you can do so much things, but we don't. And if you read about so many people in history and so many people even today, Yeah. जो कि इतना कुछ अपनी ज़िंदगियों में कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, तो उन्होंने कहाँ से अचीव कर लिया, उन्होंने कहाँ से शुरू किया, उन्होंने कहाँ से इतना एक बड़ा काम कर डाला. उनके पास भी तो वही 24 घंटे थे. उनके पास उनकी भी फैमिलीज थी, उनकी भी कमिटमेंट्स थी, उनके पास भी वो सारे मसाइल थे जिन मसाइल से हम गुजर रहे हैं. बट स्टिल दे अचीव्ड व्हाट दे अचीव्ड बिकॉज दे न्यू हाउ टू स्पेंड द टाइम, वेयर टू स्पेंड द टाइम, व्हाट आर द प्रायोरिटीज़, और क्या चीज़ ज़िंदगी में अहमियत उनकी थी. तो आपको ये सारी जब तक अपने अंदर आप सॉर्टेड नहीं होंगे तो आप ये नई चीज़ें कर सकते. फिर आप बहुत ही एक डिसोरिएंटेड से फेज में रहेंगे. आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं. इनडिसाइसिव, कोई मकसद नहीं ज़िंदगी का, कोई पैशन नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं, कुछ करने की जस्तजू नहीं. अभी तो खैर डिजिटल वर्ल्ड है, सो द टाइम इज़ रियली नॉट इम्पॉर्टेंट अभी किसी के लिए. हर कोई पूरा दिन फ़ोन्स पे है, इंस्टाग्राम ले रहे हैं. हाउ डू you how would you say that you should use Instagram wisely? Because you as a content creator, you post stuff on Instagram, so you used it wisely, I'd say. You reached so many people, and I actually went through your reel, and it was about public spaces and women. So in a way, you are impacting so many lives. पाकिस्तान में अगर हम देखें तो नहीं होता. अक्सर women spaces जो हैं वो भी males ने claim की भी होती हैं. So I feel like in a digital sense, in this digital world, how would people like me, audience में जितने हैं, aspiring enthusiasts, influencers, I'd say, how would you say what should they do? How do they start this? Achha, my thing is that I'm always on board for constructive criticism. अगर आप, and by constructive criticism मैं बताता हूँ, like I need to backtrack a bit. तो हर साल जब होता है, जब 14 अगस्त आता है, ऑलवेज गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड आई टेक पिक्चर्स. एंड मैं जब भी लगाता था तस्वीरें
मुझे एक ही टाइप के कमेंट आते थे, हमेशा एक टाइप। और मैं मेरे ख्याल में मैंने कहा मैंने तो बड़ी अच्छी तस्वीर ली है। आते थे सबके कहते थे योर पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल बट वेयर आर द विमेन, एंड हमेशा, एंड ऑल ऑफ these comments had like 500 600 likes on them, and I used to get very disheartened because I'm a man, I never saw it that way। ठीक है, मैंने तो बड़ी अच्छी तस्वीर है, and I'd be like no but they're such nice pictures, and they jealous हो रहे हैं, but they were right, ठीक है। So it wasn't until I went out of Pakistan and just अपने इलाके में श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, हमारी जैसे लोग दिखते हमारी जैसे ही हैं बिल्कुल, मगर आप लिटरली आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे आपको एकदम से फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर ख़वातीन होगी, मैंने तो पाकिस्तान में आज तक नहीं देखी इमिग्रेशन ऑफिसर ख़वातीन, वहाँ सारी होंगी। आप बाहर निकलोगे वो टैक्सी भी चला रही होगी, वो बाहर निकलोगे वो चाय भी वाली होगी, वो सब्ज़ी वाली होगी। विमेन आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक सोसाइटी ओवर देयर। एंड फिर आप वापस आओ कराची एयरपोर्ट, आप वापस आओ, नाउ आप वो साइकिल में चलो, आप कराची एयरपोर्ट नीचे एस्केलेटर से उतरो, लाइन से आपको सिर्फ 99% सिर्फ मर्द नज़र आएंगे। एंड दैट्स व्हाट आई जस्ट क्वेश्चन, मैंने कहा कहाँ की ख़वातीन सारी, बैठे देखो। और अगर ख़वातीन होगी भी, हमने उसको ऐसा शेल्टर्ड रखा हुआ है, उसके साथ या एक अब्बा चल रहे होंगे या एक भाई चल रहा होगा ऐसे, लाइक एन एवरीथिंग। बिल्कुल एक कोई बेचारी होगी जो अकेली होगी और उसको भी सब ऐसे देख रहे होंगे पता नहीं कौन गंदी, और दैट्स हाउ दे लुक एट इट, जबकि शी कुड बी द मोस्ट एम्पावर्ड एंड द मोस्ट लाइक एजुकेटेड, बट दैट्स हाउ दे लुक एट हर, दैट्स हाउ आवर सोसाइटी इज प्रोग्राम्ड अस। इन अ वे हम अपना पैशन खुद ही सप्रेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो जब आप बाहर निकले एयरपोर्ट, एंड दैट्स व्हाट हाउ द रील केम इनटू बीइंग, एंड दैट्स व्हाट आई वुड टेल पीपल कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है, सोचें तमीज से, अगर किसी ने क्रिटिसिज्म दी है ना, it's good to reflect, because that video of mine is one of the most viewed. It has almost 3 million views on it, because and it only came because I read those comments. I could have gone like nahi yaar bakwas kiya, that kind of thing. So yeah, that's what I tell people, take constructive criticism. There's something in there, there is something in there, yeah, it's there for a reason. और अगर इतना लोग बोल रहे हैं then there better be something there. सर आपको कोई criticism मिला है about being in that PAS, ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में? What struggles did you go through? नहीं, क्रिटिसिज्म तो as such नहीं मिला, लेकिन I have encountered a lot of times एक बड़ा dismissive kind of an attitude towards the arts कि भाई ये तो एक चलो तफरी है, ये भी एक साइड में हो जाती है, ज़िंदगी का हिस्सा है कि भाई चलो आपका जो असल काम है वो तो आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो आपकी असल चीज़ है। ये जो थिएटर है, ड्रामा है, ये तो बस एक तफरी है। हमने इसको कभी सीरियस लिया ही नहीं, इसको हमने ये नहीं समझा कि ये जो स्टोरी टेलिंग है, थिएटर क्या है? स्टोरी टेलिंग है ना। तो ये स्टोरी टेलिंग जो है, इसका पोटेंशियल क्या है? मैं जब इसको रिलेट करता हूँ, बिकॉज माय बैकग्राउंड जो मेरा MBA का है वो कहीं कहीं मुझे पिंच भी करता है बीच में। So when I look at the theatre, so I see a lot of relevance जो theatrical techniques हैं उसकी, और जो corporate sector में, corporate world में आप जहाँ जाएं तो एक बहुत उनका एक हर बड़ी अच्छे corporate के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, स्टाफ ट्रेनिंग होती है, एक पूरा उनका मॉड्यूल्स और प्रोग्राम्स होते हैं फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑल। उसमें अगर थिएटर को इस्तेमाल किया जाए, उस स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आ सकता है, बजाय इसके कि मुझ जैसा कोई शख्स एक कंपनी में जाके और एक स्टाफ को लेक्चर दे 1 घंटे का और उनको बोर करे और वो अपनी घड़ियाँ देख रहे हों। अगर मेरे एक्टर्स आके और वो चीज़ एक ड्रामे की शक्ल में यहाँ उनको दिखाएं उसे 1 घंटे, तो जो मैसेज उनके जहनों में जाएगा वो नहीं निकल सकेगा। ये इम्पैक्ट है, लेकिन हमने उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया बिकॉज हमारी सोच नहीं गई उस तरफ। सिमिलरली बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वो लोग कभी नहीं आएंगे उठ के आपके थिएटर में ड्रामे देखने के लिए। आपको उनके पास जाना होगा, आपको उनके अंदर रह के, उनके दरमियान बैठ के, उनके मसाइल के ऊपर एक ड्रामे की शक्ल में बात करनी होगी, जिसको हम कम्युनिटी थिएटर कहते हैं, जो कि उन्हीं के मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। एक टेक्निक ये होती है ड्रामे की, जिसमें ये होता है कि आपको पता है कि इस कम्युनिटी का क्या इशू है, आपने उसके ऊपर एक प्ले किया और कहीं प्ले आपने वो बीच में छोड़ दिया और ऑडियंस से कहा कि अब बकाया कहानी आप पूरी कीजिए, इसके बाद क्या होना चाहिए। सो दे विल कम एंड दे विल एक्ट एंड दे विल कंप्लीट द स्टोरी
That's You see, interesting. and that would trigger a conversation. Yeah. That would trigger कि ये जो इसमें रवैया दिखाया गया, जो सिचुएशन दिखाई गई, जो डायलॉग्स थे, जो बातचीत थी, और इसका हमारी ज़िंदगी पे जो ताल्लुक है, they take so much to think, to reflect, you know, ये चीज़ें होती हैं. तो ये पावर है इस मीडियम की, जो कि हम नहीं इसको इस्तेमाल कर पा रहे. हम सिर्फ इसको तफरीह का एक ज़रिया समझते हैं कि शाम में गए, देखा और आ गए, ख़त्म. कोई लेसन But नहीं so लर्न much कर रहे more. होते इससे. बिल्कुल बिल्कुल. There's a lot that can be done using these techniques. Yeah, I agree. I mean, story telling तो आप दोनों के करियर में ही है. आप रील से And करते हैं, आप थिएटर exactly. वगैरह से करते और हैं. हमारे इर्द गिर्द जितनी कहानियाँ हैं, जी. बड़ी नहीं, हर शख्स के, हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में, हर तरफ, तो हमें इन्हीं कहानियों को पिक करना है और इन्हीं कहानियों को जोड़ना है और इन्हीं कहानियों को सुनाना है और इन्हीं से अपने मसाइल को हल करना है. I agree to that because I think we're all dependent on each other. तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही होती है किसी और की ज़िंदगी से. अगर मैं अभी ये जेनोसाइड की बात ही कर लूँ तो वो हो तो बहुत दूर है, बट वो हम पे इम्पैक्ट कर रहा है. So I feel like these little stories they matter a lot. बिल्कुल. देखिए, हम genocide in today's context, when we use the word genocide, we automatically refer to Gaza and to Palestine and the situation over there. लेकिन हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुल्क में, I would call it genocide, लेकिन something close to that. जिस तरह हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ होता रहा है, Yeah. या हमारे पड़ोस के ममालिक में भी देखें जहाँ पर इस किस्म की सिचुएशंस रही हैं, तो ये दुनिया में हर तरफ हो रहा है. ये हमारे दरमियान भी हो रहा है. हम बाहर के मुल्क में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, और वहाँ जाके हम अपना कल्चर, अपना मज़हब, अपनी चीज़ को बिल्कुल मुसल्लत करते हैं और ये चाहते हैं कि हमें हर तरह की शख्सी मजहबी आज़ादी वो सोसाइटी दे, और वो देती है. वो हमें पूरी आज़ादी देती है. इन रिटर्न क्या हम उनको अपने मुल्क में आज़ादी देते हैं या नहीं देते? हम तो नहीं देते. हम तो उनको मारते हैं. हम क्या सलूक यहाँ पे करते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ. सो हमें अपने आप को देखने की बहुत शदीद ज़रूरत है. और ये बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं कि उसके ऊपर शायद आप एट टाइम्स खुल के बात ना कर सकें, लेकिन वो चीज़ें आप थिएटर के ज़रिए पहुँचा सकते हैं. Yeah. वो ड्रामे की शक्ल में, खेल की शक्ल में, एक नाटक की शक्ल में आप ज़रूर पहुंचा सकते हैं और लोगों को एक मवाद दे सकते हैं कि वो एक सोच अपने साथ लेके जाएं और एक Did you इंट्रोस्पेक्शन हो, एक think कि रिफ्लेक्शन ये हो. चीज़, you know, this idea of storytelling that kind of, you know, infused in your passion and in a way you felt passionate to tell other people that this is happening, you need to be aware of it. Well, of course, yes, of course, बिल्कुल. तो ये जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी, वो पैशन नहीं होगा, तो आप तो फिर ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे. आपकी वो सोच में वो चीज़ नहीं आएगी. So you have to have it in you Yeah. in order to do something about it. So हमारी जो कोशिश है वो यही है, नापा में जो हम काम कर रहे हैं, कि हम सिर्फ उस एक थिएटर तक महदूद ना रहें, बल्कि हम उस थिएटर को लेके कम्युनिटीज़ में भी जाएं, बाहर भी जाएं, और वहाँ जाके उनके दरमियान बैठ के भी उनको उनके मसाइल के ऊपर थिएटर की शक्ल में बातचीत करें. हम वर्कशॉप्स भी करें, हम कम्युनिटीज़ से लेके आएँ. हमारे यहाँ अभी एक फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें हमने ये भी एहतमाम किया मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस में, एक आध में, कि जहाँ पर हम कुछ उन स्कूलों के बच्चों को लेकर आए जिनको कभी शायद ज़िंदगी में मौका नहीं मिला होगा कि वो आके थिएटर देखें इस तरह का. हमने बसेस अरेंज की, हम उनको लेके आए, हमने उनको बच्चों के थिएटर दिखाए जो हमने उसमें अरेंज किए थे, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज टू द स्कूल टू दैट. बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक हम खुद वो स्टेप्स नहीं लेंगे, वी डोंट वांट टू एट नापा, वी डोंट वांट टू position ourselves and show ourselves to be an elitist institution. हमारी हर परफॉर्मेंस जो होती है उसका टिकट बहुत ही कम होता है. हम कभी भी बहुत हाई टिकट इवेंट्स कोशिश करते हैं कि ना हो. उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा ऑटोमेटिकली 50% डिस्काउंट मिलता है. फिर भी हमारे पास अगर कभी ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि वो 50% भी हम नहीं पे कर सकते, हमारी वो इस्तात नहीं है, सो वी डोंट टर्न देम अवे. जैसे कि जाके देखो,
जो पढ़ाई हमारे यहाँ जो तालीम दी जाती है, दिस इज़ फॉर द यंगस्टर्स ओवर हियर जिनको शौक है, हमारे यहाँ जो तालीम दी जाती है हेविली सब्सिडाइज्ड। महाना फ़ीस जो हम चार्ज करते हैं वो 4,000 रुपये है, और उस 4,000 रुपये को, जो कि बज़ाहिर बहुत से लोगों के लिए लगता है कि इट्स नथिंग, but there are people who cannot afford even that 4,000 a month, and there are people who can afford but the families don't support. फैमिलीज कहती है कि भाई हम तो नहीं तुम्हारे 3 साल ज़ाया करना चाहते कि तुम्हें एक्टर बनना है, ठीक है तुम्हें करना है, जाओ करो, खुद ही पे करो खुद जाके फीस। तो वो परेशान होते हैं। वी डोंट टर्न टैलेंट अवे बिकॉज दे कैन नॉट पे द फी, सो वी प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स, वी मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू। फिर जब अपना वो डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, उन्हें काम मिलना शुरू होता है, कुछ उनका नाम बनना शुरू होता है, पैसे आने शुरू होते हैं, तो माँ बाप को तसल्ली होती है कि भाई इसमें भी कुछ है। I think वो प्रूफ करने का। I think डिजिटल वर्ल्ड में we don't really do theatre, but I think अब रील का जो ज़माना, वो in a way that's our stage. How do you feel about that? How do you think that जिनके पास right now ये capacity है, how do they explore this? My thing is कि explore तो you will have to, you just have to, आपको ट्रायल एंड एरर करना होता है। शुरू में आपकी कोई ब्लॉकबस्टर वो नहीं होगी रील एंड एवरीथिंग, यू हैव टू डू ट्रायल एंड एरर एंड यू हैव टू सी व्हाट विल वर्क फॉर यू। वन थिंग व्हिच आई सी अ लॉट ओवर हियर, कई लोग होते हैं वो एक बंदे का फॉर्मूला देख लेंगे और कहेंगे इस जैसा सबने बनाना है, आपको एक लाइन से सारे बंदे उन्हीं के टाइप का कंटेंट बना रहे होंगे, सेम फॉन्ट सेम एवरीथिंग, एंड यू लाइक ब्रो मैन, लाइक तुम्हारी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है क्या? एंड या लाइक सारे अक्टूबर में बैठ के मैंने अपनी स्प्रेडशीट खोली, एंड स्प्रेडशीट में 2 कॉलम होते हैं, ये मेरी मंथली सैलरी, ये मेरा कंटेंट से आता है, एंड द मैथ्स दैट वाज कमिंग आउट वाज जो मैं साल में मेडिसिन से बना रहा था वो मैं कंटेंट से 2 हफ्ते में बना रहा था। एंड ये साफ सी बात है, दिस वाज विद मी डूइंग मेडिसिन, एंड और मेरा पूरा पाँव भी नहीं था इसके अंदर। एंड फिर मैंने बस दुआ मांगी, मैंने कहा गॉड जस्ट हेल्प मी, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ। एंड एक सॉर्ट ऑफ एक वो भी हुआ था, एक क्राइसिस हुआ था, एक सॉर्ट ऑफ क्राइसिस हुआ था कि मैंने बहुत पढ़ा था इस फील्ड के लिए, मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, मैंने बहुत इम्तिहान दिए थे इसके लिए, एंड देन यू लाइक दिस शुड नॉट हैपन, बट it just didn't make sense. And खैर my parents were not on board with it at all. They were like, नहीं तुम डॉक्टर हो, तुमने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, हमारे खानदान में कोई बंदा इस मीडिया नाच गाने फील्ड में नहीं, that's how they see it, they're the regular people of the awam, इस फील्ड में कोई नहीं गया है, you can't do this is wrong, and like they completely flipped. So एक दिन था, I was like look, पैसे तो हैं, ठीक है, I was like I'll take you guys out for a nice dinner and we'll sit and have this conversation. So I took them to Fushia, ordered a lot of food just to show them, hey, I can spend money. And that's all I was doing. It was a performance. And I was like, जो order करना है करे, ठीक है, like हाँ ये खाएंगे वो खाएंगे. My dad was in a rotten mood throughout. He's like, पागल हो गया, इसको मेडिसिन चाहिए, बिल्कुल इसका दिमाग फिर गया. And I was trying to explain it to them. I was like, look, it doesn't make sense. The zeros are not adding up. They are not making any sense. And I was having the conversation with them and everything, that bill देने का time आया and everything, and मैंने उसको सिग्नल किया, ठीक है, I was like, this is my restaurant. तो आके मुझे देता है bill, and when the bill came, उसके अंदर someone had written a note. उसने कहा, keep up the great work, Mr. Paki, it's on us today. That's so And nice. I saw the person. I don't even know who that person was. He walked by. He's like this, and went. That's inspiring. And my parents just looked at each other and just like, कुछ कर ही रहा होगा, कुछ कर ही रहा होगा जो someone. So yeah, like so after that day, like, and one thing, this is for like everyone else over here, like if you have a side passion and everything, साफ सी बात है, don't fight it out with your parents, because साफ सी बात है मुझे भी नहीं समझ आता मैं क्या कर रहा हूँ आधे वक्त. It's very new territory. You have to make them a part of it. So like my way of doing it is like if I get any paid work and everything, and they sometimes ask my mom to be in it,
I write it in contract. I was like, you're going to pay my mom also. So my mom's now on it. She's like, yeah, man. she's like, हाँ मुझे भी मिलेंगे ठीक है. So now they're like on board with it. अब now it's ऐसा है कि पूरे खानदान वाले लड़ रहे होते हैं यार खाला को नहीं डालोगे ऐड में, खाला को मैं खाला ने आज तक हिदी नहीं दी, खाला को ऐड में डालूंगा मैं ठीक है. We're a bit little short on time, so I would ask कि अगर audience में से किसी को कुछ भी पूछना है, please raise your hand. You can ask. We also have coupons for those who ask. Just so you know. आज नहीं है. Assalamualaikum. This is me, Rabia. I am a voiceover artist, and this is not a for coupon question. It really is a question. अमूमन ये कहा जाता है आर्टिस्ट के बारे में, since I am myself an artist, आर्ट की कॉलिंग आती है, बॉर्न आर्टिस्ट होता है, सर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आर्ट आपके अंदर होता है, वक्त के साथ साथ आप उसको इम्प्रूव करते हो, बेहतरी आती है, स्किल सीखी जा सकती है, इम्प्रूव किया जा सकता है. बट बिलाल आप मुझे बताइएगा इस बारे में कि आपने भी जो ज़ीरोज़ की बात की थी, ऑफ कोर्स मनी डज मैटर, लेकिन क्या आपको आर्ट के लिए कॉलिंग आई थी कि आपको हमेशा से पता था कि आपको इस फील्ड में जाना है, क्योंकि आप डॉक्टर बन रहे थे, बड़े शौक से बन रहे थे और बन गए थे और पैसे भी कमा रहे थे, तो हाउ डिड यू डिसाइड कि आपका पैशन किस तरफ है? अगर आपको इन दोनों फील्ड्स में से किसी एक को चूज़ करना पड़े, बाय fun and by shock, by love, तो आप क्या कहेंगे? I had a very honest conversation with myself. It obviously money is important, but एक दिन था where I was literally in a crisis and I was sitting and talking to my friend. I was like पाकिस्तान में जैसे मुल्क में जहाँ डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, these are the three things जहाँ इज्जत आपकी पूरी खानदान की होती है, and to say that okay, I'm over this, it is the biggest thing. Like your parents, family, खानदान की आपने पूरी मिट्टी में वो इज्जत डाल दी. And I had an honest conversation with my friend. My friend was like, Bilal, do you enjoy your work now? Do you enjoy going to this? I was like, no, I don't. And he's like, it's not fair on your patients then. I was like, yeah. And I was like, he's like, you have your answer there. And he's like, do you enjoy that more? I was like, yeah, I do enjoy it more. He's like, do you get excited to go to a new project? I was like, yes, I do. He's like, do you feel the same excitement over there? I was like, no, not at all. अब तो बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है? And he's like, why do you feel like that? I was like, because I feel valued over there. I feel like I am valued over there. I am making an impact over there. Over here, I am just another person, and that's how you have to do it. I think आपको एक बड़ी, and I guess people who are wavering between two worlds, you have to have this honest conversation with yourself, and be honest to yourself. देखो ज़िंदगी बहुत छोटी है, साफ सी बात है. And I have no regrets. I have zero regrets. But I know if I would have been continuing doing that, I would have been miserable by now. और शायद मैं 60-70 साल में सोचता, काश यार मैं कर लेता. Don't let that kash happen. Do it now. Anyone else who wants to ask a question, please? Assalamu. My name is Kamran Javed. I have a 4-year-old daughter. So मैं खुद इस फील्ड में जाना चाहता था, but same reasons, cultural issues. तो अब अगर मैं confused हूँ, like she's only 4, लेकिन अभी से प्लान करना चाह रहा हूँ उसके future का. तो I definitely wanted to do her O-levels, A-levels, because मैं इसको किससे से approach करूँ? अपने how do I get her? मैंने एक iPad लिया है, ठीक है, she's smart, everything, वो password डाल दी, सब कुछ डाल देती है, but I wanted to do this film because जो parents ही को इतना वो knowledge नहीं है, मगर शौक जरूर है, ये भी क्योंकि इस फील्ड में जाए, मीडिया साइड में जाए, तो what should I do? How can I encourage her? How can I guide her? मेरा advice to people, especially with those who have kids and everything, is देखिए, as humans, we were never programmed to know what thousands of people think about us. We were not. And if I were to tell you that it doesn't get to me, I'd be lying. Because there's, like, if 150,000 people follow me, there's probably 1 million out there who probably know who I am, or at least will have an opinion on you. As far as she goes, focus on her education. अपनी education पूरी करो and everything. And
yes, you can get her towards there by media sciences and everything, but don't get her into it abhi se. She's too young. She's too young, and I would not advise it. Like I stand by जैसे जो Shiraz है, and his father was like, इसको पढ़ने की ज़रूरत and everything. I was like, yes, because I am fortunate that I'm educated and everything, and I understand things. But kids are very young; they will not understand these things, and that's my advice. Let her get पूरा अपना पढ़े लिखे. And another thing, which is that if you are a पढ़ा लिखा person in this field, it is a very different thing compared to just someone who just came there. And I will tell you that, and that is the privilege I have in this field, is अगर वो बार-बार कहेंगे इसको लो because ये पढ़ा लिखा वाला बंदा है. There will be TikTokers with millions of followers more than me, but my advantage is that I'm educated, and that is what I will tell you to also. We're again a little short on time, so just one last question. अगर किसके पास है, please, can you just pass the mic to him? Oh, okay, you have it. Go ahead. We'll take your question as well. My question is to Junaid sir. Sir, 2005 से स्टार्ट हुआ है नापा, एंड इस फील्ड के जो ग्रेड्स थे ज़िया मोहिद्दीन साहब, वो भी इससे मुंसलिक रहे सब कुछ. तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जितने सालों से नापा सिचुएटेड है या जितने सालों से नापा बना हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था? जैसे मेरी नज़र में जितना पोटेंशियल नापा में इस वक्त पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा नापा होने चाहिए थे, लेकिन वो स्टेज तक नहीं है कंपेयर टू इन्फ्लुएंसिंग. जैसे अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं. आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि नापा ने अपना वो जो पोटेंशियल था उसको सरपास नहीं किया या उस पोटेंशियल को अचीव नहीं किया? जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. देखिए, ये नापा की एज एन इंस्टीट्यूशन तो जिम्मेदारी नहीं थी कि उस तरह के 20 और इदारे खुलते, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इम्पैक्ट नापा का बहुत हुआ. और यूँ हुआ कि नापा से पढ़ के, नापा से जिन लोगों ने अपना सफ़र का आगाज़ नापा में शुरू किया, आज बहुत सारे वो लोग जो हैं वो टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. इस वक्त हालत ये है कि टेलीविज़न पे जो भी नया ड्रामा आता है उसमें नापा के लोग ज़रूर कोई ना कोई शामिल होते हैं किसी ना किसी कैपेसिटी में, एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज प्रोडक्शन क्रू मेंबर, किसी न किसी कैपेसिटी में. इस वक्त भी नापा के बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं. हम आई थिंक बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि कितने एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जर्नी जो है वो नापा से शुरू करी. आई कैन गिव यू वन नेम विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, who started his journey from Napa, and that guy is called Bilal Abbas. So Bilal came to Napa first जब उसने acting seriously सोचा कि मुझे इस field में आना है. So and there are plenty others who are doing, who are working in the industry. अब क्यों नहीं और इदारे खुले, क्यों नहीं और जगह पे इस तरह के इदारे कायम हुए? That is something that the society has to see. That is something which state को भी देखनी होगी, प्राइवेट सेक्टर को भी देखना होगा, क्योंकि ये इदारे जो हैं इनको बहुत फंडिंग भी चाहिए होती है, रिसोर्सेज चाहिए होती हैं. और अभी जो बात हो रही थी कि माशरे में हमारे जो लोग हैं, लोगों की सोच क्या है, कि लोग अभी तक आर्ट को किस नज़रिए से देखते हैं. पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे एक्टर बने, म्यूजिशियंस बने, सिंगर बने. कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे इस शहर कराची में, विच इज़ द मोस्ट सपोजली मोस्ट प्रोग्रेसिव सिटी इन द कंट्री, कि जो खुशी खुशी कहेंगे ए लेवल्स के बाद और इंटरमीडिएट के बाद अपने बच्चे को कि ठीक है 3 साल के लिए तुम कमिट कर लो अपने आप को नापा में और एक एक्टर बनो या एक सिंगर बनो. कितने पेरेंट्स करेंगे? सो यू सी, तो ये पूरा एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है. वी आर ट्राइंग. अभी भी कराची में जहाँ जहाँ थिएटर हो रहा है, जिस स्टेज पे थिएटर हो रहा है, वो नापा के बगैर नहीं हो सकता, नापा के एक्टर्स के बगैर नहीं हो सकता. जिन जगह पे जहाँ पे भी थिएटर सिखाया पढ़ाया जा रहा है या अकेडमी किसी शक्ल में भी कायम है, उसको चलाने वाले नापा के ग्रेजुएट्स हैं. दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नापा. वी आर द नर्सरी दैट इज़ फीडिंग द इंडस्ट्री. सो इम्पैक्ट इज़ देयर, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह आगे के वक्तों में और बढ़ेगा. So please, can you just say your question? This is the last one, by the way. My question for Mr. Junaid Zubairi. Sir, I am a calligrapher. I am an artist. When I was learning calligraphy from my teacher,
he just asked me a question and I did not find the answer of that question till now. He used to ask me that when a person comes to you and he asks you, what do you do as a profession? And we say we are calligraphers, or I am an artist. So he also asked, okay, you are an artist, you are a calligrapher, and so what do you do as a profession? So what should be our answer? देखो ये बहुत कॉमन डिलेमा है कि भाई ठीक है आप एक्टिंग करते हैं बट आप करते क्या हैं वैसे आप क्या करते हैं, ये जो एक सवाल होता है लोगों का। आप जब सबसे पहले आपको खुद कन्विंस होना चाहिए कि आप एक्टर हैं, कैलीग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, व्हाटएवर यू आर, दैट योर प्रोफेशन इज, आर्ट का कोई भी शोबा जो आपका है, आप अगर खुद उसमें कन्विंस्ड हैं फिर आपको ना वो झिझक होगी, ना वो शर्म होगी, ना आपको कोई उसमें परेशानी होगी इसका जवाब देने में। दिस इज़ व्हाट आई एम, ये भी एक प्रोफेशन है। ये नहीं है कि भाई ठीक है आप कैलीग्राफी तो करते हैं मगर आपका प्रोफेशन क्या है, यू नो वैसे आप करते क्या हैं, ये तो आप ठीक है शौक है आप कर लेते होंगे, बट यू नो व्हाट डू यू डू, सो यू टेल नो दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ हु आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, दिस इज़ व्हाट आई एम। यू सी मेरी आइडेंटिटी ये है, दैट्स हाउ आई डिफाइन माई सेल्फ, एंड से इट विद प्राइड, फ़ख्र से कहें उसको, फ़ख्रिया तौर पे कहें। आपको अपने उस प्रोफेशन को बहुत फ़ख्र के साथ, प्राइड के साथ ऑन करना और उसको बताना, और जहाँ कोई इस किस्म का कोई डिसमिसिव सा या ऐसा कैजुअल एटीट्यूड से कोई सवाल करे तो आपको उसी तरह जवाब देना है कि परहैप्स यू डोंट नो, आप पता नहीं किस दुनिया के पास ही हैं। आज की दुनिया में तो ये भी एक बहुत जाना माना और इस्टेब्लिश प्रोफेशन है। Okay. Thank you for your questions. We appreciate them, and thank you both of you for being here and for gracing us with your presence. We also have two people. I'm sorry. We also have somebody from Art Council right now, and I would like them to come on stage. Also, can Sir Shoaib also come, please? So basically, you guys are from Arts Council. So I am Shahriar. I'm Ilsa Fatma, and so Arts Council has recently started and introduced a program by the name Youth Ambassador Program, जिसका मेन मकसद, मेन एम यही है कि जो आजकल यूथ जनरेशन है, आर्टिस्ट दैट आर नॉट एबल टू ब्रिंग आउट व्हाट दे हैव इनसाइड इन टर्म्स ऑफ द टैलेंट्स दे हैव, तो आर्ट्स काउंसिल का इनिशिएटिव उन्हीं लोगों के लिए है ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें टू एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड देम विद द रिसोर्सेज ताकि वो अपना वो टैलेंट शोकेस कर सकें। तो द मेन हाउ वी आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस इज़ कि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर ऑल ईयर लॉन्ग जो आर्ट्स काउंसिल के एलुमनाइज हैं, दे आर गोइंग टू बी गिविंग वर्कशॉप्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। और इंडिविजुअली किस तरह लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ये है कि वी हैव आवर यूथ एम्बेसडर्स फॉर्म्स, यू कैन फिल देम अप एंड बिकम एन ऑफिशियल एम्बेसडर, एंड उससे आपको डिफरेंट वर्क्स मिलेंगे, यू विल गेट फ्री एक्सेस टू ऑल ऑफ द वर्कशॉप्स रिगार्डिंग डांस, म्यूजिक, थिएटर, फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, एंड देयर आर सो मेनी अदर मॉड्यूल्स जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड फनून हैज़ गिवन अस दिस प्लेटफॉर्म ताकि हम ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचा सकें, एंड For this thing we are in collaboration with फनून, so एक ही मोटिव है हम लोगों का कि हम यूथ को एम्पावर कर सकें। So आप लोगों में से जो भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल फॉर्म से मिल जाएंगे, और आप इंस्टाग्राम पे YAP का ऑफिशियल पेज है, आप वहाँ पे फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। नो दे आर टोटली फ्री। थैंक यू सो मच। Thank you so much for being here. Sir, thank you. Please. Also, can Sir Shoaib, can you please come and end this session for me? He's our founder and he's an inspiring person as well. So thank you everyone, and this topic was really close to my heart, and
I haven't lived a very long life, but as much as I've lived, I've been dwindling between passion and profession, and somehow doing a day job and managing other things in the night. And I think that's something that resonates with every single person, especially the youth who's sitting here, जिनकी उम्रें गुजर गई हैं, वो उनका भी एक कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, दोनों को आखिर अधूरा छोड़ दिया, और जो अब क्या कहते हैं बड़े हो रहे हैं. सो फॉर देम इट्स मतलब ये घंटों का सेशन हो सकता है. आई एम प्रीटी श्योर मेरे जहन में इतने सवाल आते हैं, तो आपके जहन में कितने होंगे. एंड देयर मस्ट बी लॉट्स ऑफ, और एक ऑब्वियसली एक डिस्कशन से ये हल नहीं हो जाता दिस डिलेमा, बट इट्स श्योरली समथिंग. सो Funoon is possible because amazing world-class speakers, you've all seen the 4 sessions that we've had come here. So thank you Mr. Bilal Hassan, Mr. Paki, and thank you Sir Junaid Zuberi Saab. And it's also possible because itna pack hota hai session har baar, so you never disappoint us and you show that youth is interested in intellectual development in sessions like these. और जब ऑडियंस में भी have people like Meena Sayyed is sitting, who's the MD of Lightstone, जहाना साहिबा आती हैं जो CEO of Catalyst Lab, प्रिंसिपल्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, डॉक्टर साहब वाइस चांसलर साहब आए हुए हैं, रेहाना आलम आई हुई है, who's an author herself. तो you know the standards is through the roof. So and a special thank obviously to Habit and also to the volunteers. They're all school, college and university students, and they make it possible. जैसे we are moving more and more towards providing spaces to you guys, providing opportunities to the youth. जैसे हमने start किए with external moderators and external hosts. So good job Vishwan and Iman, and like Iman said, she's only 20, but she has the opportunity to sit with such speakers and moderate a packed session. It's possible because of Funoon, who is willing to give them that space. So you could be the next moderator, you could be the next person who engages us. So we're partnering with more institutions. I hope we can partner with you guys as well to provide more opportunities, more internships, more career development pathways to the youth who are in desperate need, who are like I said, passion, profession, पता नहीं है कहाँ जाना है. And we are also moving, जैसे जुनैद ज़ुबैरी ने कहा कि कोई स्टोरी के थ्रू यही चीज़ें हम लेक्चर के बजाय स्टोरी के थ्रू, नाटक के थ्रू दिखाएं तो असर ज़्यादा होगा, और हमें इनके पास आना होगा rather than expecting कि ये हमेशा हमारे पास आएँ. तो प्लीज़ जून में आप कुछ यहाँ जादू जगाएं और अपना नापा का कोई परफॉर्मेंस प्लीज़ यहाँ लेके आएँ. आज काउंसिल का जो प्रोग्राम है आप लोग जून में इनके लिए कुछ क्यूरेट करें. They really need it. They would love to watch नापा की परफॉर्मेंसेज, आर्ट्स काउंसिल की परफॉर्मेंसेज. प्लीज़ आप यहाँ इसको लाएँ और ऐसा हम करेंगे. We are moving, we are doing a lot of new things क्योंकि we have completed 6 months, so now we are moving towards youth partnerships, opportunities, internships. Stay engaged. This is our Instagram handle. Follow us, tag us, help us grow, and basically you are the power of Funoon. आप जितना इसको आगे ले जाएंगे उतना हमें ताकत मिलेगी. So thank you for yet another amazing session, and I'll see you on the 29th of June. Thank you. Thank you. Just wanted to make a very little announcement कि नापा के admissions आजकल खुले हुए हैं. This is the time when people apply for the diploma program. Theatre के admissions खुले हुए हैं और music के admissions जो हैं वो जुलाई में on हो जाएंगे. So whoever is interested, जो लोग acting सीखना चाहते हैं, this is the time. And finally, we'd like to thank our gifting partner Zabe Homes, and we'd like to present you with a very small token for coming here, talking to them, guiding them. We are eternally grateful, and we'll be in touch. Or Umar, can you please do? Thank you. Oh, what's a man? So on 29 June, Catalyst Lab also has a Karachi slushed event. You must attend it. The passes are live with a huge discount. So we'll try to work out on a mutual date. And please do attend Karachi slushed, and you can know about it all on Instagram.